مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی دی، یہی وہ مسلمان جس کے طریقے پہ غیر مسلم چلا کرتے تھے۔ لیکن ہماری اور آپ کی بدنصیب یہ ہے کہ ہمارا مذاق پوری دنیا اڑا رہی ہے۔ آج سب کوئی ایک پلیٹ فارم پر قائم ہے، لیکن ہم اور آپ انتشار پہ بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان کا کچھ اگر معاملہ ہو جائے، ہمارا گھر کا اگر کچھ معاملہ ہو جائے، ہم اس کو کھلے عام بیان کرتے ہیں، اس کی نیلامی کرتے ہیں، لوگوں کو موقع دیتے ہیں، غیروں کو موقع دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مخالفت گھر سے ہوا کرتی ہے۔ اگر گھر میں کچھ معاملہ ہو جائے، گھر میں نپٹنے کی کوشش کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں قوم یہ کہے جگہ جگہ پہ مسلمان شیر شاہ آبادی قوم، مسلم قوم زمین کے معاملے میں لڑائی کرتی ہے، پھر اسی کی ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے غیر مسلم دیکھ کر۔ کسی نے کمنٹ کیا تھا، یہی مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں دیکھ کر ایک عیسائی چلنا سیکھا تھا، تمہیں دیکھ کر یہودی تمہارے ٹکڑوں سے ٹکڑا ملایا تھا، قدم سے قدم ملایا تھا اور چلا تھا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر سب شرما۔ مسلمانوں اگر ہمارے درمیان گھر کا معاملہ ہو، ہم گھر میں ہی محدود رکھیں۔ نہ بیٹا کام میں آیا، نہ بیٹی کام میں آئے، نہ مال کام میں آیا، کوئی چیز ابو لہب کا کام نہیں دیا۔ پھر ابو لہب 3 دن یوں ہی زمین میں پڑے رہے، اتنا جسم بدبودار ہو گیا کہ بیٹا لوگ اس کے قریب نہیں گیا، محلے والے اس کے قریب نہیں گیا۔ اے لوگوں، کسی کو دعا دینے والوں، کسی کی ہلاکت کے بارے میں سوچنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی انجام ابو لہب جیسا ہو اور ہمارا جسم ایسا ہو جائے، ایسا بدبودار ہو جائے کہ ہمارا بیٹا بھی اس جگہ پہ کام نہ دے، ہمارا مال بھی اس جگہ پہ کام نہ دے۔ اس لیے سوچ لیا کیجئے۔ آگے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ پھر ابو لہب کو شعلے مارتے ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ شعلہ نکالتی رہیں گی، جس آگ کا شعلہ بڑھے گا ایسی آگ میں ابو لہب کو ڈالا جائے گا۔ اور ہاں سنیے، وامرأتہ ابو لہب کی بیوی، وامرأتہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی، لکڑیاں اکٹھا کرنے والی ہوگی۔ ابو لہب کی آگ میں لکڑیاں چن چن کر لائے گی اور اس آگ میں ڈالے گی، جس سے آگ اور کھولیں گے، آگ اور بڑھے گا، آگ کا شعلہ اور بڑھے گا اور ان آگ میں ابو لہب کو ڈال دیا جائے گا۔ یہاں نہ بیوی کام میں آیا، نہ ابو لہب کام میں آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا تفسیر بہت سارے مفسر نے الگ الگ کیا۔ لکڑیاں ڈھونے سے مراد کسی نے یہ بھی لیا کہ ابو لہب کی بیوی لان تان میں زیادہ آگے رہا کرتی تھی، ہمیشہ لوگوں کو گالی دیا کرتی تھی۔ کسی نے تفسیر اس کا یہ بھی کیا کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی جنگلوں میں جا کر کھاردار جھڑیاں اخاڑ کر لے آتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ جب آپ اس راستے سے گزرتے ان پیروں میں آپ کا کانٹا چبھ جاتا تھا۔ یہ تفسیر 3 طرح کے تفسیر میں نے آپ کو بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، میرے پیارے ساتھیوں، نہ ابو لہب کو مال کام میں آیا اور نہ اس کی اولاد کام میں آئے۔ تو کسی کو بد دعا دینے سے پہلے سوچ لیا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو بد دعا الٹے ہمارے طرف اللہ منسوخ کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ابو لہب کی بیوی کو خبر ہوئی کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، محمد رسول اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، وہ لوگ تو یہی کہتے تھے محمد نے آیت لکھی ہے، بہرکہ قرآن میں جب یہ آیت پڑھی ان کی بیوی اور غصے میں آ گئی اور اللہ کے نبی کو گالی دیتے ہوئے پورے قبیلے میں، پورے سڑک میں دوڑتی ہوئی نکلی، گالی دیتے دیتے مسجد نبوی میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو گالی دیتے ہوئے ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں ایسی جگہ میں چھپ جائیے جہاں ابو لہب کی بیوی دیکھ نہ پائے۔ آپ نے کہا ہے ابو بکر میں چھپنے والا نہیں ہوں، اللہ کی کرامت ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ حقیقت میں گئے، ابو بکر صدیق سے پوچھا تمہارا دوست کہاں ہے، تمہارا دوست محمد کہاں ہے؟ حالانکہ محمد اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کو نظر نہیں آیا۔ کبھی آپ نے خوشخبری اس انداز سے دیا ہے لوگوں، دنیا میں جو لوگ تکالیف برداشت کرتے ہیں، دنیا میں جو لوگ مصائب کے رنج و عالم کو بیڑا پار کرتے ہیں، جب جنت میں اس کو ڈالا جائے گا پہلی مرتبہ جہنم میں گوتا لگائے گا، پہلی مرتبہ جنت میں گوتا لگائے گا، ان دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ دنیا میں کسی کا مار کھایا،
दुनिया में लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनी, दुनिया में लोगों ने उसको हकीर जाना, दुनिया में पेट में खाना देने के लिए कुछ ना मिला, सुबह खाया तो शाम को नहीं मिला, शाम को खाया तो सुबह नहीं मिला। दुनिया में इस हालत से गए, गरीबी हालात में गए, तकलीफ बर्दाश्त किए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसको जब जन्नत में पहली मर्तबा डाला जाएगा, पहली मर्तबा जन्नत में गोता लगाएगा, दुनिया की इन तमाम तकलीफ़ों को भूल जाएगा, दुनिया के इन तमाम मसाइब को भूल जाएगा, दुनिया के इन तमाम दुख और दर्द को भूल जाएगा। लेकिन हाँ ऐ लोगों जो इस दुनिया में आयश इज़्ज़त करते रहे, तो पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र आयश इज़्ज़त में बिताते हो, हमेशा अच्छा खाना, हमेशा अच्छा लिबास, जो इस तरीके की ज़िंदगी गुजारते हो, सुनो तुम्हें जब एक मर्तबा जहन्नम में डाला जाएगा, एक मर्तबा जहन्नम में गोता लगाओगे, दुनिया की तमाम नियामतों को भूल जाओगे। आपने बशारत इस अंदाज से दिए, आए दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त करने वाले, ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जन्नत में ऐसा मकाम मिलेगा, एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो जाओगे तो इन तमाम तकलीफ़ों को भूल जाओगे। पहली चीज़ शाहिद बनकर आए, दूसरी चीज़ पहली चीज़ गवाही देने वाले, दूसरी चीज़ खुशखबरी देने वाले, और तीसरी चीज़ बयान कर रहा हूँ, आपको अल्लाह ताला ने डराने वाला बनाकर भेजा था। आप आया और लोगों को जहन्नम के अजाब से डराया, आप आया और लोगों को कब्र के अजाब से डराया। इस तरीके से डराया है लोगों, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इस मंजिल को अगर पार कर जाओगे और मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी के सामने जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता, जब जहन्नम का दर्दनाक मंजर बयान किया जाता, उस्मान गनी नहीं रोते, लेकिन कब्र का जिक्र किया जाता, कब्र का तज़किरा किया जाता, उस्मान गनी चीख ज़ारो कतार रोया करते थे। साहबा ने कहा, आए उस्मान ये बताओ क्या बात है, जहन्नम के अजाब से इतना डरते नहीं हो, लेकिन कब्र के अजाब से क्यों डरते हो? उस्मान कहते हैं, हमने सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, 7 आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इस मंजिल को पार कर लेगा, 7 मंजिलों में पहली मंजिल को क्रॉस कर लेगा, उसके लिए और मंजिल आसान हो जाएंगे। इसलिए मैं कब्र के अजाब से ज़्यादा डरा करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आपने कभी इस तरीके से डराया है लोगों, कब्र में ऐसे अजाब दिए जाएंगे, जहन्नम में ऐसे अजाब दिया जाएगा, जहन्नम में जहन्नमियों को डाला जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में डाला जाएगा। जन्नती जहन्नमी की तरफ देखेंगे और जहन्नमी से पूछेंगे, जहन्नमी आज तुम्हें जहन्नम में किस वजह से डाला गया है? जहन्नमी कहेंगे, आए जन्नतियों मुझे आज जहन्नम में इसलिए डाला गया है, तुम्हारे साथ उठना बैठना लेटना, ये चिमनी बाजार का रास्ता से पूर्णिया जाना एक साथ हुआ करता था, लेकिन हमने दुनिया में ज़कात नहीं दिया करते थे, हम दुनिया में यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, हम दुनिया में नमाज अदा नहीं किया करते थे, इसलिए आज हमें जहन्नम में डाला गया है। आए जन्नतियों सुनो, हम पर थोड़ी सी रहम करो, हम पर थोड़ा सा दया करो और जन्नत की एक खुशबू, जन्नत का प्याला, जन्नत की थोड़ी सी अब हयात दे दो, उसको पीकर अपना प्यास बुझा लूँगा। जन्नती कहेंगे, जहन्नमियों तुमसे मैंने पूछ लिया, यही शुक्रिया अदा करो, यही खुशियाँ मनाओ, आज मैं तुम्हें जन्नत का अब हयात क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं दे सकता हो, जन्नत की खुशबू भी तुम्हें नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दराज तक जाएगी, लेकिन उन जहन्नमियों के पास जन्नत की खुशबू तक नहीं पहुँची, जन्नत की खुशबू तक नहीं पहुँचेगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद जन्नती अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे, जहन्नमियों को तो कितना बड़ा सदमा लगेगा, कितना बड़ा महसूस होगा। आप गौर कीजिए, हम उस जगह में जब रहेंगे, दुनिया में हम पसीना पसीना हो जाते हैं, दुनिया में आग को देखकर हमें कैसा डर महसूस होता है, दुनिया में किसी पक्के रूम में हमें रख दिया जाए, खिड़कियां बंद कर दिए जाए, रोशनदान बंद कर दिए जाए, दरवाजे में ताला लॉक कर दिया जाए, ऊपर में दीवार हमारा गर्म हो जाए, ऊपर में हमारी छत अगर गर्म हो जाए, हमें कैसा महसूस होता है? गोया कैसा महसूस होता है कि हम जहन्नम में है। लेकिन याद कीजिए जहन्नम का मंजर कैसा होगा। इस दुनिया में आग को देख लीजिए, वो इंसान आग में जलता है, उनके चेहरा कैसे जल जाता है, उनका जिस्म कैसे जल जाता है, उनका जिस्म कैसे
जलता है, लेकिन इस आग से भी वो कितने खतरनाक होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपने कभी लोगों को इस तरीके से डराया? आए इस दुनिया में लान तान करने वालों, आए इस दुनिया में गीबत करने वालों, आए आए के पीछे पड़ने वालों, जहन्नम में मैंने देखा, मुझे मेराज कराई गए, जन्नत में देखा कुछ लोग खून के दरिया में गोता लगा रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील मन हाउला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में ब्याज खाया करते थे, जो दुनिया में हराम कमाई किया करते थे। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी को खातिर, जो अपनी औलाद के खातिर हराम कमाई किया करते थे, गरीब भाइयों का पैसा लूटा करते थे, दुनिया में चोरी किया करते थे। आज जहन्नम में इनका सर फोड़ा जा रहा है और खून के दरिया में गोता लगा रहा है। आपने कभी औरतों को जहन्नम के अज़ाब से डराया और फरमाया आए मेरी उम्मती, आए मेरे सहाबा, आए औरतें सुनिए, आए मेरे सहाबिया सुनिए, मैंने जहन्नम में देखा सबसे ज्यादा फराई तो अक्सर औरतों को पाया। जब मैंने अत्तला तो फिर नार जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को पाया। आपको मेराज हुई, आप मेराज से वापस आए, ईदगाह जा रहे, रास्ते में औरतों से मुलाकात हुई, औरतों को ये बयान करते जा रहे थे, औरतों से कहते जा रहे थे वो साहबिया मैंने जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए पाया। साहबिया सवाल करती है अल्लाह के नबी वो कौन सी औरतें हैं जो सबसे ज्यादा जहन्नम में जलती है? आपने फरमाया दो किस्म की औरतें हैं। एक किस्म की औरतें वो है जो हमेशा लान तान किया करती है, जो हमेशा एक दूसरे को गाली दिया करती है, जो हमेशा एक दूसरे की ग़ीबत किया करते हैं, इसकी बात उसको उसकी बात इसको हमेशा लगाया करते हैं, चुगली किया करते हैं, लान तान में हमेशा आगे रहते हैं, मुँह चलाती है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा दिखाए गए, जहन्नम में ऐसे औरतें सबसे ज़्यादा पाए गए। दो किस्म की औरतें वो होंगे जो दुनिया में अपने शौहर का फरमाबरदार नहीं बना, दुनिया में अपने शौहर का एहसान अदा नहीं किया, दुनिया में अपने शौहर का शुक्रिया अदा नहीं किया, अपने शौहर का नाफरमान रहा। कुछ औरतें ऐसे हैं आप उसको हज़ारों सामान लेकर दीजिए, कपड़ा ला कर दिए, बाजार सब सामान दीजिए, आप अगर हफ्ते में 8 दिन में, हफ्ते में 7 दिन में 6 दिन अगर सब कुछ देते हैं, लेकिन एक दिन अगर कुछ देने में कमियां कर देंगे, वो आपके तमाम उसूल को, तमाम नक़ाइस को ज़ाहिर कर देंगे और अपने पड़ोसी की औरत से कहेंगे हमारे शौहर के पास ना आज खाने के लिए कपड़ा, खाने के लिए सामान है, न पहनने के लिए कपड़ा है, इसके पास ना बैठने के लिए कुछ है, न रहने के लिए कुछ है, इनके पास हमें सुख कहाँ है? ये तो हमें रहने के लिए न कोई अच्छे घर देते हैं, न पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े देते हैं, न खाने के लिए कुछ देते हैं, हज़ारों खिलाइए। और मेरी माँ बहनों, अपने शौहर का नाफरमान ना बनिए, अपने शौहर के फरमाबरदार बनिए। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने कितना गहरा बताया है। दुनिया में एक इंसान माँ से हर बात नहीं बता सकता है, दुनिया में एक इंसान माँ से हर कुछ जाहिर नहीं कर सकता है, दुनिया में एक इंसान अपनी बहन को हर बात नहीं बता सकता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है मरने तक, इंतकाल के वक्त तक उनका रिश्ता बाकी रहता है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अगर शौहर मर जाए, वो औरतें वो सहाबिया सुनिए, अगर तुम्हारा शौहर पहले इंतकाल कर जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने शौहर को गुस्ल दो। अगर बीवी इंतकाल पहले कर जाए और शौहरों और सहाबा, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने बीवी को गुस्ल दो। सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता इस दुनिया में इस दुनिया तक महदूद नहीं रहा। जब जन्नत में मर्दों को इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा व हदाइक़ व अनाबा व कवाइबा अतराबा, जब मर्दों को हूरें दी जाएंगे, मर्दों को हूर मिलेगी, फिर दुनिया की वो नेक बीवी को उसके सामने लाया जाएगा। और अल्लाह के नबी को सवाल किया, अल्लाह के नबी मर्दों को उस दुनिया में हूर मिलेगी, हूर इतने खूबसूरत होंगे, बड़ी बड़ी आँखें होंगी, इतने खूबसूरत हूर होंगे, और हम लोग तो काले हैं, हम लोग तो बदसूरत हैं, हम लोग खूबसूरती नहीं है, हमारे दरमियान खूबसूरती नहीं है, क्या हमें हमारा शौहर उस दिन पसंद करेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन हूरों से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें अल्लाह उस दिन बना देगा।
मियाँ बीवी का रिश्ता उस दुनिया में भी बरकरार रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बता रहा था कि मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा बाकी रहता है। आए लोगों, आए मेरी माओ बहनों, कभी शौहर का नाफरमान न बनिए, शौहर का एहसान अदा कीजिए, शौहर का शुक्रिया अदा कीजिए और जगह जगह पर शौहर के आयब को बयान न कर दिया कीजिए। शौहर की इज्जत को हमेशा ढांपते रहिए। ये भी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम शौहर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकते हो, मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर मस्जिद भी जाना ही है तो तुम्हें शौहर की इजाजत लेना पड़ेगी। अगर तुम्हें नफली रोजा रखना ही पड़े फिर भी शौहर से इजाजत लेना ही पड़ेगी, शौहर से इजाजत लेना ही पड़ेगी। यहाँ तक आपको फरमाया, एक औरत जब नमाज अदा करती है, रोज़े रमज़ान के रोज़े रखती है और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है, क़यामत की दिन उसे कहा जाएगा क़ील लहा, आ जाओ, उदख़ुली, दाखिल हो जाओ, अय्युबाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे में शीत जिस दरवाजे में चाहो दाखिल हो जाओ। मेरी माओ बहनों, जहन्नम में सबसे ज़्यादा आपको पाया गया एक वो है जो अपने शौहर का नाफरमान है, अपने शौहर का शुक्रिया अदा नहीं करती है। एक वो है जो लानतान में आगे रहती है। मेरे प्यारे साथियों, आवाज़ मेरी बैठी हुई है, अल्लाह ताला से दुआ गुज़ारिला हमारी तबीयत में साज़गार अता फरमाए। इंशाअल्लाह कभी मैं आपके बीच रहूँगा, फिर कुछ ज़्यादा ही आपके सामने बोलूँगा। आवाज़ साथ नहीं दे रही है। मैं आपसे बहुत गुजार हूँ कि आप मुझे इस चीज़ का रियायत करते हुए मुझे छूट दीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करूँगा अल्लाह ताला हम सब की सेहत को साज़गार रखें ताकि हम सब कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सही दीन में और सोच बुध अता करें। हम सब आपस में लड़ाइयाँ छिड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हम कर देते हैं, जलसे जुलूस दीन के नाम पर हम और आप कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं जलसे जुलूस में लड़ाइयाँ छिड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी कौम बात बात पर लड़ाई ना करने लगे, बात बात पर झगड़ने ना लगे। आज वो चीज़ हमारे सामने जाहिर हो चुकी है कि हम छोटी छोटी बातों पर सब ना करके लड़ाइयाँ छिड़ देते हैं। हमें और आपको अल्लाह ताला से दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के दरमियान समझ दे, बूझ दे और समझदारी से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है, आज हमारी मजाक यहूदी उड़ा रही है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमें देख कर यहूदी भी शर्मा रहे हैं। यही मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी दी, यही वो मुसलमान जिसके तरीक़े पे गैर मुस्लिम चला करते थे, लेकिन हमारी और आपकी बदनसीबी है कि हमारा मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। आज सब कोई एक प्लेटफार्म पर कायम है, लेकिन हम और आप इंतशार पे बटे हुए हैं। हमारे दरमियान का कुछ अगर मामला हो जाए, हमारा घर का अगर कुछ मामला हो जाए, हम उसको खुलेआम बयान करते हैं, उसकी नीलामी करते हैं, लोगों को मौका देते हैं, गैरों को मौका देते हैं। एक बात याद रखिएगा, मुखालिफत घर से हुआ करती है। अगर घर में कुछ मामला हो जाए, घर में निपटने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें कौम एक है, जगह जगह पे मुसलमान शेरशाहबादी कौम, मुस्लिम कौम जमीन के मामले में लड़ाई करती है, फिर उसी के वीडियो को वायरल किया जाता है। गैर मुस्लिम देखकर किसी ने कमेंट किया था, यही मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें देखकर एक ईसाई चलना सीखा था, तुम्हें देखकर एक यहूदी तुम्हारे टकरों से टकरा मिलाया था, कदम से कदम मिलाया था और चला था, लेकिन आज तुम्हें देखकर सब शर्मा। मुसलमानों, अगर हमारे दरमियान घर का मामला हो, हम घर में ही महदूद रखें और अल्लाह ताला से दुआ है हमारे हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।